Good morning, one and all present here. Today, 10th of June, and I would just want to say one important event that is related to 10th June. That is, today is the birthday of a very remarkable person from our country. His name is Mr. Sundar Pichai. At present, he is the CEO of Google and he belongs to India and he is an IIT alumni. So now moving to our next training session. Today's topic is communication skills. This is Ghanshyam Singh, and I would like to introduce something about the communication. I would just like to ask, what is communication? Yes, sir? Good morning, everyone.
In my opinion, communication is a way to explain our idea and information to the person. In another way, we can say the act of giving, receiving and sharing information is called communication. Thank you. Thank you so much, sir. Just to hold big hand for Abhishek sir. Yes, sir, you have just correctly said that communication is nothing just, it is an act of giving, receiving and sharing information. मतलब माध्यम है बेसिकली, हम किसी भी तरह से जानकारी दे रहे हैं, हम जानकारी रिसीव कर रहे हैं या जानकारी को शेयर कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन. फॉर एग्जांपल, we have certain incident about the mass communication. हमने इसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा. मास कम्युनिकेशन, तो मास कम्युनिकेशन मतलब होता है कि एक बार में सैकड़ों लोगों तक को जानकारी पहुंचाने का जो माध्यम होता है, that is mass communication. Just like electronics media, print media, it is. So just focus on the topic, that is communication skills. Good communication is the bridge between confusion and clarity. तो अच्छा एक communication होता है, वो एक माध्यम होता है, एक tool होता है, जो हमारे यहाँ जो bewildered होते हैं, जो puzzled होते हैं, जो confusion होता है और जो clarity होता है, उसके बीच एक माध्यम होता है. अगर हमारा communication effective है, अगर हम अपनी बातों को अच्छे तरीके से पहुंचा सकते हैं, तो हो सकता है कि there is no any sense of confusion there. ऐसा अक्सर हमारे साथ होता होगा when while we are teaching our classes. बहुत सारे जगहों में ऐसा हो सकता है जहाँ पर बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकते, तो हो सकता है वहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इफेक्टिव ना हो. So if our communication skill is effective, if we have worked on our communication skill, then it is certainly that there would be no any scope of confusion there. अगर हम अपनी बात को अच्छे तरीके से पहुंचा सकते हैं लोगों तक, तो वहां पर कंफ्यूजन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है. So, in order to get a clear idea about any topic, effective communication is a mandatory. So, I would just like to add something. Communication may be writing, communication may be verbal, और communication may be sign language. Sign language में भी communication होता है. जैसे अक्सर अगर मान लीजिए हम कहीं बिजी हैं और अगर हमसे कोई पूछ रहा है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो हो सकता है वहाँ पे हम yes no ना बोले तो हम सिर्फ इशारा करते हैं ठीक तरीके से. इसका मतलब है आ जाओ. या हम ट्रैफिक में जब जाते हैं, ऐसे ट्रैफिक में आप जब हम जा रहे हैं, वहाँ पे कोई सिग्नल होता है, तो वहाँ पे आप देखते हैं जो हमारे ट्रैफिक पुलिसमैन होते हैं वो इशारों से काम करते हैं, ऐसे रुको, आ जाओ. ये बेसिकली दिस इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन में भी वर्बल और कम्युनिकेशन में भी नॉन वर्बल. इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे. Communication is a series of experience of hearing, smell, seeing, taste and touch. Basically communication also relies with our sense organs. हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं: नोज, ईयर्स, आईज, टंग एंड स्किन. 5 हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं. तो कम्युनिकेशन उससे भी हमारा एक माध्यम बनता है. तो जस्ट वी कैन से दैट कम्युनिकेशन just a series of experience of hearing, smell, seeing, taste and touch. Communication skill is the ability to use language and express information. Effective communication skills are a critical element in your career and your personal life. Basically communication skill होता है वो एक माध्यम होता है, हमारा एक एबिलिटी होता है कि हम कैसे चीजों को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. जैसे कि अक्सर जब भी हम इंटरव्यूज में जाते हैं, we all are here and certainly we have given interview. तो पहला जो हमारा सबसे पहले जो चेकिंग होता है, जो हमारे जो इंटरव्यू बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं वो जो चेक करते हैं, they check our communication skill. कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, हम चीजों को किस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप कितने इफेक्टिव तरीके से चीजों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं. दैट इज द कम्युनिकेशन स्किल.
So communication skill is so much important for building our career. अगर हमें अपना करियर को ग्रो करना है, अगर हमें अपने करियर को बढ़ाना है, तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि ये एक माध्यम होता है अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने का। अगर ये इफेक्टिव होगा तो हमारे लिए कई रास्ते आगे करियर के खुलते हैं। Communication goals. Now it's time to discuss about the various communication goals, that is to change behavior, to change action, to ensure understanding, to persuade, to get and give information, and lastly that is environmental. So these are the various goals that are related with the communication. I would just like to repeat this: to change the behavior, to get action, to ensure understanding, to persuade, to get and give information, and it is environmental. कम्युनिकेशन हमारा बिहेवियर को भी कहने में एक चेंज लाता है। अगर हमारे पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन की ताकत है, अगर हम चीजों को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसमें चांसेस दैट दे विल सर्टेनली चेंज आवर बिहेवियर। इट आल्सो गिव एक्शन। अगर हम कम्युनिकेशन के माध्यम से कुछ एक्शन का मतलब क्या है? जैसे हम बच्चों को अगर पढ़ा रहे हैं, बच्चों को अगर हम ए फॉर एप्पल पढ़ा रहे हैं, तो ए फॉर एप्पल पढ़ाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो वहां भी जो सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन टेक्निक है वो हमें इस्तेमाल करना है, ताकि हमारे बच्चे जो उन चीजों को बढ़िया से सीख सके। आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे जो प्ले स्कूल्स होते हैं, वहां पे विद हेल्प ऑफ एक्शंस बच्चों को सिखाया जाता है, किसी भी तरीके से, चाहे वो गाकर, चाहे वो छोटी मोटी कुछ डांस वांस करके, जब विद हेल्प ऑफ सम रेलेवेंट एग्जांपल, तो वहां भी क्या होता है ताकि बच्चे उस चीज को सीख पाए। तो एंश्योर अंडरस्टैंडिंग, हमें समझ को बढ़ाने में भी ये कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इफ आवर कम्युनिकेशन स्किल इफेक्टिव, देन द थिंग्स विल बी अंडरस्टूड इजीली। परसुएड, परसुएड मतलब किसी तक अपनी बात को पहुंचाना, परसू करना। So in that scenario, effective communication is also very good tool to get and give information. हमें किसी तक किसी जानकारी को पहुंचाना है या कहीं से किसी जानकारी को हमें प्राप्त करना है, उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। Mostly we have certain ways to communicate. First one is speaking. अगर हम किसी से वार्तालाप करना चाहते हैं तो एक माध्यम होता है, हम उससे बातचीत करके अपनी बातों को उन तक पहुंचा सकते हैं। That is speaking, writing. हम लिखित रूप में भी अपनी बातों को वहां तक पहुंचा सकते हैं। With the help of writing, we can also convey our messages. जो भी हमारा इश्यूज है, जो भी बातें हैं, हम दूसरों तक विद द हेल्प ऑफ राइटिंग उनको पहुंचा सकते हैं। विजुअल इमेज, कुछ इमेजेस को शो करके, जैसे कि अगर हम आपसे पूछें एक सेब यहाँ पे लगाया तो वो ये है क्या, तो हम सबको पहचान है हाँ ये एक सेब है। तो वहां पे हमने आपको ना तो हिंट दिया, ना उसके बारे में बताया, ना ही आपको लिखित में दिया, लेकिन फिर भी आपने उसको पहचान लिया। दैट इज द विजुअल कम्युनिकेशन। एंड लास्ट इज बॉडी लैंग्वेज, मतलब हम अपने इशारों से या हमारे बॉडी की कुछ हरकतों से हम अपनी बातों को इफेक्टिवली लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे क्लासेस में अगर बच्चे बहुत ज्यादा शोरगुल कर रहे हैं, तो अगर आप वहां पे अपना बॉडी लैंग्वेज को स्पीड शो करते हैं तो बच्चे थोड़ा डरते हैं, सर का बॉडी लैंग्वेज जो लग रहा है सर गुस्से में, तो हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत तरह से बातों को पहुंचा सकते हैं। अगर हम कुछ बातें अगर बतानी है किसी को, तो हम वहां पे इशारे में उसको बता सकते हैं। So that is related to our body language. So to understand the communication in a better way, let's see a video that we will discuss. Okay, that will be discussed later. Types of communication.
तरीके से हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज on the basis of organizational relationship. So we have two types of communication, that is formal and informal. On the basis of expression, that is oral, written, gesture. On the basis of flow, that is vertical and horizontal. तो ये तरह का हमारा जो फॉर्मल और इनफॉर्मल रिलेशनशिप होता है, एक्सप्रेस कैसे हम चीजों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हम चीजों को बोल के एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम चीजों को लिख कर एक्सप्रेस कर सकते हैं, या हमारे जेस्चर से, हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है उस तरह से चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो, किस प्रकार से हमारी बातें जा रही है, किस तरह का हमारा फ्लो मूवमेंट है, दैट में भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो ये सब बेसिकली दिस आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। So just see the video, then you will discuss later. So what's the recipe for great communication? If we were going to think about our communication as a meal, what are the ingredients that we need to have present in the meal? How do we put together a great meal? Well, let's think about it this way. There are really 5 ingredients that have to be present all the time for great communication to be possible. Okay, the first ingredient is clarity. How do you make your point clearly? It's got to be clear. The second ingredient is brevity. How do you get to the point quickly? How do you not waste people's time? The third ingredient is context. How do you help people see how your point or how your message fits in for them, as it makes sense for them? The fourth ingredient is impact. How do you make it stand out? How do you make it memorable? And the fifth ingredient is value, which is fairly self-explanatory. How do you make your message valuable to the people who are consuming it? 5 ingredients that will go into every communication meal: clarity, brevity, context, impact, and value. Okay, great. So we've got our ingredients. Now the next question is, how much of each ingredient do we need? And just like cooking a great meal, that's going to depend. Different meals are going to need different ingredients. They're going to need the ingredients in different proportions. And different audiences are going to have different palates. They're going to want different things out of their meal. So the really savvy communicator is going to look at their row of ingredients, is going to be able to determine, based on the audience that they're preparing their message for, what ingredients need to be dominant. So how do you figure it out? Well, when do we need clarity to be an important ingredient? Well, when there's a lot of complexity around the situation, around the issue, you need to make sure that your message includes plenty of clarity so people understand what this is really about. When we need a bit of brevity, well, when time is short, when the attention span is short, when your audience is going to be very, very senior, you want to make sure you have enough of the brevity ingredient. How about context? Well,
which of those ingredients needs to be most common. Think about your communication, like you're preparing a meal for an audience that you want to impress, you want them to have a great experience. And different audiences have different palates, which means you have to adjust the ratios of the ingredients depending upon the situation. We have seen that there are basically 5 pillars of effective communication. 5 pillars हमने देखे जो कि effective communication कहीं नहीं बता रहे. The first one was clarity. चीजों में clarity होना बहुत जरूरी है. जो भी चीजें आप बताना चाह रहे हैं वो सामने वाले लोगों को समझना है. Next one is brevity. Next context and other two were discussed. So we must have the ability or the idea of acquiring these 5 pillars in our communication so that our communication will be better and relevant. कभी-कभी क्या होता है ना कि communication करते-करते हम टॉपिक से भटक जाते हैं. ये हम सब लोगों की आदत होती है. Suppose we have to discuss about some topic और हम भटकते-भटकते कहीं और चले जाते हैं. तो उससे क्या होता है कि communication हमारा relevant नहीं रह जाता. आप अक्सर देखते होंगे अगर किसी दो लोगों में बहस हो रही है, किसी नॉर्मल दो लोगों में बहस हो रही है, किसी बात को लेकर बहस कर रही है, तो वो बहस चलते कहां से कहां चले गए तो कोई रिलेवेंट नहीं है उसका. तो इस तरह की चीजों से हमें बचना चाहिए बिकॉज इट इज नॉट द साइन ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन ऑल्सो रिलाई ऑन द वैल्यू. बहुत सारे वैल्यूज भी हमें कम्युनिकेशन पे रिलाई करता है और वैल्यूज की जरूरत हमें वहां पड़ती है जहां पे मॉडल वैल्यूज की बात कर रहे हैं, जहां पे हमें किसी को डिसीजन लेना, जहां पे डिसीजन मेकिंग वगैरह की बात होती है वहां पे हम वैल्यूज को अडॉप्ट करते हैं. सो वी हैव जस्ट डिस्कस्ड अबाउट द 5 pillars ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. Just you can see that there are several types of communication on the basis of organizational relationship, on the basis of expression and on the basis of truth. Barriers of communication. कभी-कभी क्या होता है कि communication जब हम कर रहे हैं तो वहाँ पे रुकावटें भी बहुत तरह की आती हैं. बहुत तरह की रुकावटें आती हैं. That are barriers to the communication. That is semantic barrier, emotional or psychological barrier, organizational barrier और barriers in superior. अलग-अलग तरह की वहाँ पे रुकावटें हम देखते हैं. अगर मान लीजिए कि आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं और वहाँ पे किसी भी प्रकार से वो कम्युनिकेशन बाधित हो जाए. बहुत तरह के कारण हो सकते हैं. वो कम्युनिकेशन जब बाधित हो जाए then they will be considered as the barriers of communication. That they may be semantic barrier. First one is semantic barrier, that is symbols with different meaning, badly expressed messages, fault translation, unclarified assumption, specific language. जैसे कि कभी-कभी क्या होता है कि हमारे पास एक ही वर्ड के बहुत सारे मायने होते हैं, एक ही शब्द के बहुत सारे मायने होते हैं. Suppose, for example, if I speak a word cell, C-E-L-L, क्या समझते हैं आप cell से? मैंने किसी वर्ड बोला, just give me the meaning of cell, C-E-L-L. कोशिका, yes. Anyone? Yes, the battery used with mobile or anything. सेल का मतलब इनको बैटरी समझ में आया. इनको सेल का मतलब बायोलॉजी वाला कोशिका समझ में आया. जैसे चैम्बर, पर्सन चैम्बर उनको चैम्बर समझ में आया. और कोई सेल मतलब बेचना भी होता है बट सिर्फ सेल वाले को मैंने सेल बोला तो सेल से एक ही वर्ड के अलग-अलग मायने समझ में आए. इनको सेल का मतलब कोशिका लगा, इनको सेल का मतलब जो हमारा बैटरी होता है वो लगा, उनको सेल का मतलब एक चैम्बर, जो इनको सेल का मतलब बेचना. दिस इज द बैरियर.
अभिव्यक्ति हमारी वही है, बट लोगों ने अलग अलग तरीके से समझा। दिस इज द बैरियर ऑफ द कम्युनिकेशन, कि हमने बातों को बताया कुछ और लोगों ने समझा कुछ और। पैडी एक्सेल मैसेज, जो मैसेज है उसको हम ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाए, जो हमारा थीम है, हम अगर थीम पे ढंग से काम नहीं कर पाए, दैट इज द पैडी एक्सेल मैसेज। फॉर ट्रांसलेशन, जो हमारा अनुवाद है, वो अनुवाद में कहीं कहीं त्रुटि रहता है, जो भी बातों को हम ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट रह जाए, दैट इज आल्सो बैरियर ऑफ सिमेंटिक बैरियर। अनक्लैरिफाइड एजम्पशन, अनक्लैरिफाइड मतलब कि जो हमने अनुमान लिया है, जो एजम्पशन लिया है, वो हमारे पास खुद क्लैरिटी नहीं, जो भी अनुमान हमने लिया वो खुद क्लैरिटी नहीं है, दैट इज अनक्लैरिफाइड एजम्पशन एंड स्पेसिफिक लैंग्वेज। हो सकता है कि हम सभी लोग अलग अलग तरीके से चीजों को समझ रहे हैं, तो एक स्पेशल लोगों का लैंग्वेज हो, जैसे कि अलग अलग भाषा लेके यहाँ पे आप भारत के 28 राज्य से लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हमने कोई एक लैंग्वेज इस्तेमाल किया तो किसी पर्टिकुलर स्टेट में ही बोला जाता है, तो हो सकता है कि बाकी के 27 लोग यहाँ ना समझे, सिर्फ एक राज्य वाला समझे, क्योंकि उनके यहाँ बहुत बोलचाल नहीं बोली जाती है। तो इसी प्रकार से बैरियर में एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है स्पेसिफिक लैंग्वेज। अगर मैं यहाँ पे अभी आपके सामने अगर मैं अरबी बोलने लगूं, अरबी, तो हो सकता है एक दो अरबी समझे, बाकी लोग ना समझे, तो वो दैट इज द बैरियर ऑफ द कम्युनिकेशन, कि मैक्सिमम लोगों तक वो मैसेज करके नहीं हो पाया एंड वहां पे लैंग्वेज हमारा कहने के बैरियर बना और वो लैंग्वेज जो है सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर स्पेशल ग्रुप को ही वो इन्फ्लुएंस कर पाए। So these are the factors of the semantic barrier. Emotional or psychological barrier. Premature evolution in attention, loss of transmission and poor retention, distrust of communication, failure to communicate. These are the basic. I would just rely on two topics, that is distrust of communication and failure to communicate. Distrust of communication, अगर बातें हो रही है तो जो हमारे श्रोता हैं उसको वक्ता के ऊपर भरोसा ही नहीं, दैट इज द डिस्ट्रस्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कि ये जो बोल रहा है तो समझ नहीं आता है, कुछ भी आता है बोल के चला जाता है, दैट इज द डिस्ट्रस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। फेल्यूर टू कम्युनिकेट, आप अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाने में असक्षम, जो आप बोलना चाह रहे हैं वो सामने वाला उस चीज को गेन नहीं कर पा रहा, दैट इज ऑल्सो failure to communication. Personal barrier and barrier in superior. Attitude of superior, fear of challenge of authority, lack of awareness in time, unwillingness to communicate, lack of proper incentive. Attitude of superior. Attitude of superior मतलब कि हमसे जो superior है, जो हमसे सर्वोच्च है, उनका एटीट्यूड हमारे खिलाफ अच्छा नहीं है, हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो कभी कभी क्या होता है वहां पे हम कम्युनिकेट करने से बचते हैं, कभी कभी हम कम्युनिकेट करने से बचते हैं। सपोज वी आर वर्किंग सम इंस्टीट्यूशन, तो हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और मान लेते हैं कि हमें छुट्टी चाहिए, कुछ कारणवश हमें छुट्टी चाहिए, हम डर रहे हैं कि अगर हम अपने सीनियर से, जो हमारे प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, जो और मैनेजमेंट के लोग हैं, अगर हम उनके पास जाएंगे और हम छुट्टी के लिए उनसे इंतजार करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो वो हमें डांट देंगे कि तुमको तो बहुत छुट्टी चाहिए, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, बिना बताए छुट्टी ले लेते हैं। अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है, बिना बताए जो हमने छुट्टी लिया तो उनको मैनेज करने में दिक्कत है, क्योंकि उनको इंतजार करके हम आए। तो दिस इज बिकॉज ऑफ एटीट्यूड ऑफ सुपीरियर, जो हमारे ऊपर के लोग जो हैं उनका एटीट्यूड हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, तो हम वहाँ पे कम्युनिकेट करने से बचते हैं। नेक्स्ट, फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी, जो हमारे अथॉरिटी है, जो प्राधिकरण है हमारा, कहीं ना कहीं हमें उससे डर है कि हम बोलेंगे तो क्या सोचेगा, कहीं हम कुछ गलत तो नहीं बोल देंगे। बहुत से लोगों को ये हिचकिचाहट होती है, आप बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, आपके अंदर कंटेंट बहुत अधिक है, आप चीजों को अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन आपको डर लगता है कि अगर हम बोले गलती से कुछ गलत निकल गया तो लोग क्या सोचेंगे, तो हमारे बारे में क्या सोचेगा। तो दिस इज ऑल्सो अ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड टाइम, कभी कभी क्या होता है, समय का अभाव है, हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम उसको इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाए, और कभी कभी
अनविलिंग टू कम्युनिकेट, कभी कभी हमें मर्जी की नहीं होती। जैसे अब क्लासेस में आप पढ़ा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को आपने एक्सप्लेन किया, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मतलब नहीं, वो वहाँ पे कम्युनिकेट करने की इच्छुक है नहीं, वो चाहते नहीं हम उसमें कम्युनिकेट करें, वो चाहते नहीं कि हम इसमें इंटरैक्ट करें और चीजों को हम बेहतर तरीके से समझें। तो दिस इज आल्सो अ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, जितना उन्हें मिलना चाहिए इंसेंटिव, जितना उन्हें बेहतर मिलना चाहिए, एक तरह से अप्रेजल बोल ले, वो उनको नहीं मिल पाता, तो भी प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम कम्युनिकेशन। तो भी हम वहाँ पे खुद को कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को कम्युनिकेट करने से बचाएं। So these all are the barriers of that we have discussed in the personal barriers and barriers in superior. So before going further, I would just like to ask a question: how many types of communication methods? Rajesh ma'am. Hello everyone. Mainly there are 3 types of communication. The first one is verbal communication, the second one is non-verbal, and the third one is visual communication. Thank you. Thank you so much, ma'am. Give a big hand for ma'am. Yeah. So stated there are basically 3 types of communication methods, that are verbal communication, non-verbal communication, and visual communication. Now move to our topic, that is communication process. Communication का process क्या, कैसे हम बातचीत या जो हमारा वार्तालाप है वो आगे बढ़ता है। Just you can see that there is a circle, or that we can see that there is a cycle. Sender, हमने किसी मैसेज को भेजा, यहाँ से कोई भी मैसेज है हमारा, हमने उस मैसेज को भेजा, कैसे वो मैसेज किसी रिसीवर के पास गया, उस रिसीवर ने उस मैसेज को रिसीव किया और लास्टली फिर हमें हमारा फीडबैक दिया। जैसे हमने आपसे पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा कि आप बताइए कि कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो आई वाज द सेंडर, मैं यहाँ पर सेंडर था, मैंने अपना मैसेज आपको भेजा कि अगर आप में से कोई जानते हैं तो बताइए कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं। ये मैसेज मैम के तक गया, मैंने उस मैसेज को डिकोड किया कि हाँ हमसे कम्युनिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है। मैम जो थी वहाँ पे क्या थी, वो रिसीवर थी, उन्होंने चीजों को रिसीव किया, मैसेज जो मेरा मैसेज था उसको रिसीव किया, फिर मैम ने मुझे फीडबैक दिया कि हाँ कम्युनिकेशन जो है वो 3 प्रकार का होता है, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल। सो दिस इज बेसिकली द चैनल ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। वन इज सेंडर, सेकंड इज रिसीवर। कम्युनिकेशन होने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए, कम से कम, बाकी मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं। मास कम्युनिकेशन में n नंबर ऑफ पीपल हो सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है। कम्युनिकेशन कोड, that is sender, channel and receiver। देखिए होता क्या है कम्युनिकेशन में, just go on over each and everything has some science in it। तो अगर हम जब बोलते हैं चीजों को, जैसे हमने किसी चीज को बोला, एक्सप्लेन किया, तो एक्सप्लेन किया तो मेरी आवाज जो है वो हवा के थ्रू जाते जाते आपके कान तक जाती है। कान में हमारे बहुत तरह के पार्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उस चीजों को एनालाइज करते हैं और ऑडिटरी नर्व्स के द्वारा हमारे ब्रेन तक भेजते हैं। वो ब्रेन की चीजों को एनालाइज करता है और हमें बताता है कि हाँ हमें ये चीज कही जाती है। तो सबसे पहले चीज को क्या करते हैं हम, एक एनकोडर, मैसेज और डिकोड। एनकोडर का बेसिकली वो सेंसर होता है, वो चीजों को भेजा मैसेजेस वहां पे कैरी ऑन हुआ और लास्टली वो किसके पास गया, एक रिसीवर के पास जो उसको डिकोड करता है। कभी-कभी कम्युनिकेशन होने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता भी होती है। सपोज कभी-कभी हमारा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, तो वहां पे जो हमारा चैनल हुआ वो टेलीफोन हुआ। कभी-कभी इंटरनेट कम्युनिकेशन होता है, सोशल मीडिया पे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होता है। सो कम्युनिकेशन हैज n नंबर ऑफ पार्ट्स। इट मे बी टेलीफोनिक, इट मे बी सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, और इट मे बी डायरेक्ट कम्युनिकेशन, जहां पर हम डायरेक्टली किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं।
communication basically involves three components. That is, first one is verbal messages, paraverbal messages, non-verbal messages. Verbal messages include the word we choose. verbal में कुछ शब्दों का हम चुनाव करते हैं, कौन से शब्द हमें वहां पे बोलने हैं। paraverbal message how we say the word, उस शब्द को हम कैसे पेश करते हैं। पहले तो हमने वर्ड का चुनाव किया, दूसरा उस वर्ड को हमने कैसे पेश किया। थर्ड योर बॉडी लैंग्वेज, हमारे वो पेश कर रहे हैं हमारे बॉडी लैंग्वेज कैसा था। जैसे कि हमने एग्जांपल आपको दिया था सेल के बारे में। सिर्फ अगर सेल मैंने बोला तो आप लोगों के दिमाग में 4-5 तरह की चीजें आई, लेकिन अगर मैं इस प्रकार से बोलता कि मैंने एक कॉपी को 10 रुपए में खरीदा और मैं उसे 12 रुपए में सेल करूंगा, यहाँ पे सिंपली बात समझ आ जाती है। सेल कलेक्शन ऑफ वर्ड, paraverbal how you deliver that word, second our body language। तो हमने उसको बोला कि हमने 10 रुपए में भाई उसको खरीदा और 20 रुपए में हम उसको बेच रहे हैं, या हम 20 रुपए में उसको सेल कर रहे हैं। यहाँ पे साफ साफ समझ आता, यहाँ पे SELL की बात हो रही है, यहाँ पे CELL की बात नहीं हो रही। तो सिलेक्शन ऑफ वर्ड एंड हाउ यू एक्सप्रेस दैट वर्ड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल कम्युनिकेशन। जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो सिलेक्शन किस प्रकार की और कैसे आपने उसको पेश किया, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। Send clear concise messages, receive and understand message sent to us। जब भी हम किसी को मैसेज भेज रहे हैं तो मैसेज हमें क्लियर भेजना चाहिए और कॉन्साइज मतलब संक्षिप्त रूप में उसको भेजना चाहिए, ताकि वो चीजों को समझ के उस पर एक्ट कर सके। एंड रिसीव एंड अंडरस्टैंड मैसेजेस सेंड टू अस, जब भी हमें कोई मैसेज मिला तो उसका फीडबैक हमें जरूर देना चाहिए। जो भी मैसेज हमें मिल रहा है उसका एक फीडबैक देना चाहिए, ताकि जो हमारा सेंडर है उसको भी समझ में आ जाए कि हाँ जो मैसेज हम भेजना चाह रहे थे वो रिसीवर तक पहुंच गया। तो फीडबैक इज सो मच इंपॉर्टेंट व्हाइल कम्युनिकेटिंग। Sending messages, effective verbal messages are brief, succinct and organized, are free of jargon, do not create resistance in the listener। जब verbal message आप भेज रहे हैं तो जो मैसेज वो ब्रीफ होना चाहिए, संक्षिप्त रूप में होना चाहिए, succinct एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। मतलब कि आप जो भेज रहे हो वो तितर-बितर ना हो, मतलब चीजें जो है वो फैली ना हो, बल्कि वो अरेंज वे में हो और सब वो सेंटर तक जाए। और फ्री ऑफ jargon मतलब कुछ भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का उसमें बोल सकते हैं आप फॉल्ट नहीं होने चाहिए। एंड डू नॉट गेट रेजिस्टेंस इन द लिसनर को सुनने में जब समय में परेशानी ना हो, किसी प्रकार का वहां पे अवरोध ना हो, किसी प्रकार की रुकावट ना हो। Non-verbal communication are the primary way that we communicate emotion। Non-verbal में क्या होता है, हम बेसिकली अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, हमारे बॉडी लैंग्वेज से चीजों को कम्युनिकेट करते हैं। जैसे just you can see there are some facial expressions। first one, पहला facial expression देख के लग रहा है ये जो है वो खुश है। दूसरा facial expression देख के लग रहा है ये जो है मतलब नॉर्मल अपना एक जॉली मूड में है, बहुत खुश नहीं है बट नॉर्मल है। और तीसरे वाले में लग रहा है ये काफी गुस्सा है। तो मतलब फेशियल एक्सप्रेशन भी एक वे होता है कम्युनिकेशन का। दूसरा पोस्चर एंड जेस्चर, हमारा पोस्चर और जेस्चर भी बहुत कुछ बताता है कि हम किस प्रकार से चीजों को बताना चाहते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कुछ चीजों का बिल्कुल हमें ख्याल रखना चाहिए, हमारा जेस्चर कैसा है, हमारा बॉडी लैंग्वेज किस प्रकार का है। Paraverbal communication refers to the messages that we transmit through the tone, pitch and pacing of our voices। Paraverbal communication है बेसिकली कि हम किस प्रकार से अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, हमारा पिच क्या है। पिच basically scientific term that is related to the frequency of our sound, कि हमारे साउंड की फ्रीक्वेंसी किस प्रकार की है। कुछ लोगों का क्या होता है कि अगर वो अच्छे तरीके से भी बोलते हैं तो लगता है कि काफी रूड बोल रहे हैं। That is the quality of its sound। उनके साउंड की जो टोन होती है वो क्वालिटी होती है।
जैसे साइंस में जो चीजों को बताया जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे पिच के बारे में बताया जाता है कि गर्ल्स और बच्चों का जो पिच होता है वो काफी हाई होता है, और बॉयज का जो पिच होता है वो गर्ल्स का और बच्चों का जो पिच होता है वो हाई होता है, और बॉयज का जो होता है वो लो पिच होता है। इसी वजह से अगर कोई लड़की बहुत जोर से चिल्ला रही है तो वो आपको कानों को बहुत ज्यादा चुभ सकता है, तकलीफ दे सकता है, ठीक है, बिकॉज उनका साउंड की जो पिच होती है वो काफी हाई पिच होती है, वो आपके कान से दूसरे वॉइस सुन भी आ सकते हैं अगर वो अच्छे खाने चिल्ला रहे हैं तो। So this is the example. I did not say you were stupid. I did not say you were stupid. I did not say you were stupid. Meaning same है, लेकिन कुछ वर्ड पे जोर दिया गया, कुछ वर्ड पे जोर दिया गया। I did not say you were stupid. यहाँ पे से पे जोर दिया। मैंने कहा नहीं कि तुम stupid हो। दूसरा, मैंने तुम्हें नहीं कहा कि stupid हो। लास्ट, मैंने तुम्हें नहीं कहा कि stupid हो। तीनों वर्ड का मतलब अलग-अलग निकलेगा अगर आप उसको ध्यान से एनालाइज करेंगे तो। पहला में कहने पे फोकस किया गया, से, दूसरे में तुम पर फोकस किया, और तीसरे में स्टूपिड टर्म पे फोकस किया। तीनों वर्ड के जो मायने हैं वो कहने के अलग निकलेंगे। हमारे कभी-कभी क्या होता है कि हम चीजों को किस प्रकार से बोल रहे हैं उस पर बहुत अधिक फर्क होता है। अगर आप किसी बात को अगर सॉफ्टली बोले वही बात अगर कह रहे हैं और किसी बात को अगर उसी बात को दूसरे में कह रहे हैं, दोनों का इम्पैक्ट अलग-अलग होता है। So this is an example of para-verbal messages. Receiving message. While we receive energy, there are some listening skills that is requires concentration and energy. सुनना एक बहुत बड़ा काम है, and I am so thankful to all of you कि आप लोग यहाँ पे बैठे हो और मेरी बातों को सुन रहे हैं। तो सुनना एक बहुत बड़ा काम है। बोलने से कहीं अधिक चीजों को सुनना है और उसमें कहीं ज्यादा कंसंट्रेशन और एनर्जी लगती है। एंड वी आर सो थैंकफुल टू आवर स्टूडेंट कि जो हमारे स्टूडेंट इतने देर तक कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं। सो अ गुड लिसनर रिक्वायर्स हिज कंसंट्रेशन एंड हिज फुल एनर्जी। वो पूरी एकाग्रता के साथ और पूरी ऊर्जा के साथ चीजों को सुनता है। इन्वॉल्व अ साइकोलॉजिकल कनेक्शन विद द स्पीकर। जो भी यहाँ पे वक्ता होते हैं और जो भी श्रोता होते हैं उनके बीच एक दोनों का बॉन्डिंग बन जाता है, इमोशनल बॉन्डिंग दोनों का क्रिएट हो जाता है। Include our desire and willingness to try and see things from another perspective. जब भी एक अच्छा श्रोता होता है, एक अच्छा लिसनर होता है, वो चीजों को अलग तरीके से सोचने और समझने का गुण भी अपने अंदर रखता है कि अगर जो चीज इनको बताया गया है क्या इसकी ये मायने हो सकते हैं, तो वो हमेशा नई नई टेक्निक, नई नई चीजों में वो कहने में अपने आप को इन्वॉल्व करता है। रिक्वायर दैट ही सस्पेंड जजमेंट एंड इवोल्यूशन। वो तुरंत चीजों को जज नहीं करता। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे वक्ता कुछ बोल रहा है और बोलने में वो मान लो कोई गलती कर दे, तो एक अच्छा श्रोता जो होता है वो तुरंत जज नहीं करता, इसको तो कुछ आता ही नहीं, क्योंकि इसी प्रति माइंड थोड़ा आ जाता है। ये चीज नहीं, जो एक अच्छा श्रोता होता है वो सामने वाले को एनकरेज करता है कि अगर आपसे गलती हो भी गई तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम यू कैन डू बेटर, आप और अच्छे से काम कीजिए। तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड लिसनर। There are some listening skills for non-verbal and verbal communication. Non-verbal, giving full physical attention to the speaker, being aware of speaker's non-verbal messages. जो एक non-verbal में जो एक अच्छा श्रोता होता है वो जो फिजिकली पूरा अटेंशन देता है, अपने आप को पूरी तरह से वो मौजूद रहता है। जो भी छोटी-छोटी बातें या बड़ी वाली बातें जो भी बताई जाती हैं उस पर पूरी तरह से वो फोकस करता है। और जो स्पीकर के कुछ नॉन-वर्बल मैसेजेस होते हैं जो वो बोल कर नहीं बता पा रहा है, हो सकता है वो इशारों में चीजों को बता दे, उन पे वो फोकस करता है। जैसे मान लीजिए कि हम क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते हम बच्चों को इशारे बोल दिए ऐसे, तो इसका मतलब क्या, हमने उसको इशारा किया, आप चीजों को नोट करो, लिखो। तो एक अच्छा स्पीकर जो होता है वो उन चीजों पे फोकस करता है कि व्हाट स्पीकर इज सेइंग एंड व्हाट स्पीकर इज टेलिंग ट्रूथ। वर्बल
पर वो पूरी तरह से फोकस करता है, पूरी तरह से उससे अपने आप को इन्वॉल्व करता है ताकि वो चीजों को अच्छी तरह से समझ पाए। What makes a good communicator? क्या एक अच्छा कम्युनिकेटर बना सकता है? फर्स्ट वन इज क्लैरिटी। चीजों में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। जो भी आप चीजें बता रहे हैं उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, वो आपस में मिले जुले ना हो। जो भी वर्ड, जो भी सेंटेंस, जो भी पैराग्राफ आप बता रहे हैं वो अच्छी तरह से पूरा एक्सप्लेन हो। एडिक्वेसी जितनी जरूरी है उतना ही बोले, क्योंकि अत्यधिक बोलना या कम बोलना दोनों कहीं ना कहीं गलत है। अगर आप बहुत ज्यादा बड़ा बोले, जिसको हम बोलते हैं और स्पोकन कैंडिड, तो भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। टाइमिंग, पर्याप्त समय में चीजों को खत्म करना, पर्याप्त समय में चीजों को खत्म करना। जितना आपको स्पेसिफाइड टाइम है उतना टाइम में आप चीजों को खत्म करें। एंड लास्ट, इंटीग्रिटी, एकीकरण। Whatever the thing, whatever the word are spoken, they must be integrated with each other. वो आपस में कहीं ना कहीं relevant होने चाहिए, कहीं ना कहीं उनका एकीकरण होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। So just I want to ask a question. What are the different ways to overcome from communication barriers? कि जो हमारा कम्युनिकेशन बैरियर है उसको किस प्रकार से हम ओवरकम कर सकते हैं, किस प्रकार से हटा सकते हैं? यस सर। Hello. Good afternoon, everyone. There are six different ways to overcome from communication barriers. First one is use simple language. Second, use visuals. Third, if possible, communicate person to person. Fourth, do not form any theory on culture, religion, and or geography. Fifth is respect others' opinions. And sixth is take help of translator to overcome different in language. Thank you. Thank you so much sir for your word. Just sir has told the various method to overcome the barriers. कि जो भी हमारे barriers आ रहे हैं, जो भी रुकावटें आ रही हैं, उनको किस प्रकार से हम खत्म करें? First one, we should use simple language. जो भी बातें हम बता रहे हैं वो सीधे साधे शब्दों में हो। बहुत ज्यादा होता है कि कुछ लोग अपनी बात को व्यक्त करने के लिए बहुत ज्यादा लचीलापन भाषा का प्रयोग करते हैं। वो सोचते हैं कि इससे बहुत बड़े 30-5 खान बन जाएंगे। ऐसा कुछ होता नहीं, बल्कि क्या होता है, सामने वाले जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इससे बोरियत फील करते हैं। सामने वाले कहीं ना कहीं से बोर फील करते हैं। तो बहुत ज्यादा लचीलापन भाषा का प्रयोग ना करते कर सीधी साधे अपने बातों को अभिव्यक्ति करनी चाहिए। Try to communicate in person as much as possible. जो भी लोगों को मैसेजेस दे रहे हैं, जो भी लोगों को मैसेजेस दे रहे हैं, सीधा सीधा उनसे कम्युनिकेट में करना चाहिए ताकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन वहां पे आए। Do not form assumption on culture, religion और ज्योग्राफी। किसी भी धार्मिक, कास्टिज्म या ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं होता है, क्योंकि इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन हमारा कहीं ना कहीं बाधित होगा। Take help of a translator to overcome differences in languages. जैसा कि आप लोग असेंबली वगैरह में सभा में देखते होंगे, वहाँ पे ट्रांसलेटर्स होते हैं। अगर क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज एक जैसे ना बने, लोग जो है एक दूसरे की भाषा को, एक दूसरे की बात को कहीं ना कहीं समझ पाए। Be respectful to others' opinion. और जो दूसरे लोग हैं उनकी ओपिनियन से भी तरजीह दिया जाए। ऐसा नहीं कि जो आप बोल रहे हैं वो भी सही है, क्योंकि बहुत जगह हमने ये देखा कुछ भी सही कुछ भी गलत नहीं होता, बस चीजों को देखने का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। चीजों को बस देखने का पर्सपेक्टिव होता है, तो इसलिए हमें दूसरे की ओपिनियन को भी काफी तरजीह देनी चाहिए।
Now, how do we develop our communication skill? हम अपने communication skill को कैसे बढ़ा सकते हैं? There are basically three methods, that is oral. अगर हम oral presentation कर रहे हैं, तो we should be presentable. हमारा presentation जो है, वो बहुत ही appropriate होना चाहिए. जो भी चीजों को हम show कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा appropriate होना चाहिए. Audience awareness. जो भी हमारे श्रोता हैं, जो भी spectator हैं, वो उसके बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करें, वो उससे अवेयर हो. ये नहीं कि कोई भी irrelevant topic को हम लेके चले गए, तो कहीं न कहीं परेशानी का सबब बन सकता है. That would be not a sign of effective communication. Body language. Our body language must be proper. जो हमारा body language है, वो बिल्कुल proper होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी जो बातों को है, वो लोगों तक पहुंचा सकें. Non-verbal communication, audience awareness, पर्सनल प्रेजेंटेशन. अगर हम नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो ऑडियंस का अवेयरनेस है, जो भी हमारे श्रोता वहाँ पे हैं, उनका अवेयरनेस काफी ज्यादा जरूरी होता है. और पर्सनल प्रेजेंटेशन, आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करें वहाँ पे, क्योंकि आप वहाँ पे चीजों को कम्युनिकेट कर रहे हैं. यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड हो गए, यू मस्ट बी वेल प्रेजेंटेड, वेल प्रिपेयर्ड. Academic writing, revision and editing, presentation of data. अगर हम written communication वहाँ पे कर रहे हैं, तो academic writing, जो भी writing हमने किया है, that would be relevant. Revision and editing, बार-बार उसको revise करते रहना कि हमने जो लिखा क्या वो सही है, क्या उसमें कुछ त्रुटि है, और अगर उसमें किसी प्रकार की editing की आवश्यकता है, तो we must do that. Presentation of data, lastly, जो भी data हमारे पास जो भी statistics है, उसको हमको effectively वहाँ पे present करना है, so that our communication skill get enhanced. Before going further, I want to ask a question. What is the importance of non-verbal communication? Yes, sir. Good morning, everyone. I am Sudhir Kumar, Assistant Professor in BDS. The importance of non-verbal communication is very much important. Even in day-to-day life, we use mostly our communication in the way of non-verbal. Like we use body language to teach our children. We don't say every children sit down. We use all our hands and eyes to coordinate the gesture so that we minimize our words, and that's why a survey says that 93% of our communication, we do communication in the way of non-verbal. That's the importance of non-verbal communication in day-to-day life. Thank you so much, sir. Just you have correctly stated about the importance of non-verbal communication. तो non-verbal communication तो बहुत ज़्यादा important हमारे जीवन में. According to the data, 55% communication is done through body movement, face and arm. लगभग हम अगर 100% communicate कर रहे हैं चीजों में, तो 55% जो communication होता है, वो हमारे body movement से होता है. जो हमारे facial expression से हो, हमारे आँख जैसे हम लोग को आदत होती है बोलते-बोलते हाथ पर इस प्रकार हिलाते हैं, तो उस प्रकार हम लोग communicate करते हैं. 38% communication is done using voice, tone and vowel. 38% जो 38% communication होता है, वो हमारी आवाज, जो हम लोग बातें कर रहे हैं, हमारा किस प्रकार अंदाज है बोलने का, क्या हमारा टोन है, उस पर रिलाई करता है. Only 7% communication is done using words. 7% जो है हमारा वो शब्दों को लेकर जाता है. मैक्सिमम से मैक्सिमम communication जो है हमारा बिना शब्द के हो जाता है. बिना शब्दों का इस्तेमाल किए भी हम लोगों से communicate कर सकते हैं via other method. And lastly, around 93% of our communication is non-verbal. अगर ये सारे डेटा को अगर मिला दिया जाए, तो लगभग 93% communication जो होता है हमारा वो non-verbal होता है, जहाँ पे हम बिना बोले भी लोगों से communicate कर सकते हैं. Suppose we all are aware of WhatsApp chatting. हम सारे लोग WhatsApp पे chat करते हैं, तो वहाँ पे हम बिना बोले भी अपनी बातों को with the help of messages लिख के भेजते हैं और हम चीजों को समझते भी. Suppose we have to send some photo, we have to send some video, and we have to send
there are some tips for good communication skill. अच्छे वार्तालाप के लिए कुछ यहाँ पे टिप्स दिए हुए हैं. First, maintain eye contact with the person you are. जिस भी लोगों से बातचीत हो रही है, एक प्रॉपर आई कांटेक्ट जरूरी है. जैसे अक्सर आप देखेंगे बहुत लोगों की आदत होती है, वो जब बातें करें तो नजरें उनकी नीची होती है. तो इन चीजों से बचना चाहिए. अगर आपको कम्युनिकेशन बेहतर करना है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है, तो आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है. कभी भी आपको इंटरव्यूज में जाएंगे तो वहाँ पे इन चीजों को बहुत देखा जाता है. प्रॉपर आई कांटेक्ट है कि नहीं, बॉडी का पोस्चर है कि नहीं, ये सब चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है. इंटरेक्टिंग विद द ऑडियंस. जो भी ऑडियंस से जिन तक हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं, उनको हम किस प्रकार से इंटरेक्ट कर रहे हैं. बॉडी अवेयरनेस, जेस्चर एंड एक्सप्रेशन, फॉलो वंस हाउ प्रैक्टिस इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स. जेस्चर एंड एक्सप्रेशन कि हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, कैसे हम चीजों को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, क्या हमारे फेशियल एक्सप्रेशन है, क्या हमारा बॉडी मूवमेंट है, क्या हमारा हैंड मूवमेंट है, क्या हमारा आई मूवमेंट है. ये सारी चीजों को जब हम जोड़ते हैं, दैट कम अंडर आवर जेस्चर. कॉन्वे वंस हाउ, जो हमारी बात है क्या हम लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं या नहीं पहुंचा पा रहे हैं. दैट इज द मेन थिंग. एंड लास्ट इज प्रैक्टिस इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल. व्हाटएवर the skills that makes our communication effective, we must rely on that and we must employ it. जो भी communication skill है हमारा, जिससे हम rely कर रहे हैं, उन सब को हमको यूज करना है ताकि हमारा communication बेहतर हो. नेक्स्ट, एक्टिव कम्युनिकेशन. एक्टिव कम्युनिकेशन के कुछ रूल्स हैं. इट इज टू वे. दोनों तरह से कम्युनिकेशन होता है. ये नहीं कि वक्ता सिर्फ बोलता रह जाए और श्रोता सिर्फ सुनता रह जाए. दोनों तरह से जब टू वे कम्युनिकेशन होता है तो कम्युनिकेशन हमारा बेहतर होता है, इफेक्टिव होता है. इट इन्वॉल्व एक्टिव लिसनिंग. जो भी हमारे लिसनर हैं, दे मस्ट बी एक्टिवली पार्टिसिपेट. उनको बहुत ही एक्टिवली से पार्टिसिपेट करना है, हर चीजों को सुनना है, हर चीजों को समझना है ताकि उनका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो. इट रिफ्लेक्ट्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्पीकर एंड लिसनर. जो स्पीकर है और जो लिसनर है, क्या उसकी कैपेबिलिटी है, क्या उसका एबिलिटी है, वो भी कहीं ना कहीं वहां पे रिफ्लेक्ट होता है अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो. इट यूटिलाइजेस फीडबैक. Each and every communication needs a feedback. जब भी आप communicate कर रहे हैं तो श्रोता की तरफ से जो listener को जो feedback आना जरूरी होता है, so that the speaker may improve themselves. ताकि वो अपने आप को improve कर सके, बेहतर content देने की कोशिश करें. It is free of stress. This is the most important. अगर आप stress में आ गए हैं, किसी प्रकार से आपको परेशानी है, किसी प्रकार से किसी ने आपका मनोबल तोड़ दिया, तो हो सकता है कि वहां पे कम्युनिकेशन बेहतर ना हो और जितना कंटेंट आप देना चाहें उतना कंटेंट ना दे पाए. तो द कम्युनिकेशन मस्ट बी स्ट्रेस फ्री सो दैट अ गुड कम्युनिकेशन स्किल डेवलप. इट इज क्लियर. जो भी कम्युनिकेशन हो वो बिल्कुल साफ सुथरा हो, किसी भी बात को उसमें रेजिस्टेंस ना हो, किसी प्रकार का उसमें बैरियर ना हो. नाउ I want to ask a question. What is public speaking? Public speaking से क्या समझते हैं? Yes, sir. Good morning, everyone. Public speaking is speaking face to face or in front of group, large number of group is called public speaking. From my point of view, public speaking is based on 3 P's. First, prepare. Second, perform. And the third one is participate. Thank you so much, sir, for your words. Yes, you have just correctly said that public speaking. Public speaking is basically speaking face to face to a live audience or in front of a large group of people. सपोज एक नेता साहब को हमारे भाषण देते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पब्लिक स्पीकिंग. जो न्यूज एंकर न्यूज पढ़ते हैं, दैट इज ऑल्सो पब्लिक स्पीकिंग. जो टीचर क्लास लेते हैं, दैट इज ऑल्सो पब्लिक स्पीकिंग.
ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन लोग पढ़ा रहे हैं, दैट इज आल्सो पब्लिक स्पीकिंग। एंड यहाँ पे हम सारे लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ इट इज आल्सो पब्लिक स्पीकिंग। तो पब्लिक स्पीकिंग जब आप बहुत सारे मास को एक साथ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एक साथ चीजों को बता रहे हैं, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग। एंड पब्लिक स्पीकिंग बेसिकली फोकसेस ऑन 3 P। P फर्स्ट वन इज प्रिपेयर। जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग करें या आप करने जाएं, यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आपको उसके लिए तैयार होना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो एक न्यूज़ चैनल है, जब वो न्यूज़ पढ़ते हैं तो उसके लिए पहले पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। तो जो स्लाइड्स उनके सामने चलता है वो उसको पढ़ पाते हैं। अगर वो प्रिपेयर्ड ना हो तो कहीं ना कहीं वो परेशान हो सकते हैं, वो गड़बड़ हो सकता है और फिर दैट विल बी नॉट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो टीचर क्लास में क्लास लेते हैं उनको भी अपना होमवर्क करके आना होता है, नहीं तो अगर वो पढ़ाते पढ़ाते कहीं गड़बड़ा गए तो फिर क्या होगा कि वहां पे परेशानी हो सकती है। सेकेंड इज प्रैक्टिस। व्हाटएवर वी हैव टू स्पीक, जो भी चीजें हमें बोलनी है, जो भी चीजें हमें बोलनी है, वी मस्ट डू प्रैक्टिस फॉर दैट। हमें उसका एक अच्छा प्रैक्टिस करना है ताकि वी मे गेट द ऑप्टिमम रिजल्ट एंड मैक्सिमम रिलेवेंट टॉपिक्स विल बी डिलीवर्ड। बेहतर से बेहतर कंटेंट हम वहां पे दे पाएं और बेहतर तरीके से अपनी बातों को पहुंचा पाएं। एंड लास्ट इज परफॉर्म। इफ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड वेल, देन देयर आर सर्टेन चांसेस दैट यू विल परफॉर्म वेल। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है, अच्छे से आपने प्रेजेंट किया है अपने आप को, अच्छे से आपने प्रिपेयर किया है, तो बहुत चांसेस है कि आप वहां पे अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएं। So, basically public speaking relies on 3 topics, that is prepare, practice and perform. Lastly, one more thing is added in this, that is participation. Participation is also so much important, but it is towards the audience. अगर हम क्लासेस ले रहे हैं, हम किसी किसी चीज को बताया और बच्चे उससे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं ढंग से, then the whole day will go in vain. तो वो बेकार की चीजें हो जाएगी वहाँ पे। तो instead of 3P, we also rely on 4P, that is the participation. I would just like to conclude the communication skills that communication is nothing, it is just an art of giving, receiving and sharing the information. We have discussed about the various communication skills, that is verbal, non-verbal and facial or visual. We have also learned about the various barriers of the communication. कि जब हम communication कर रहे हैं तो किस प्रकार के वहाँ पे रुकावटें आ सकती हैं, किस प्रकार से barriers आ सकते हैं. We have also discussed about the public speaking and its keys. कि how to make our communication more effective. किस प्रकार से हम अपने content को ज़्यादा effective, ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं. So it's time to sum up today's training session, and I am so thankful to all of you that you all have gathered here, given your precious time, listen my word. I am so happy for you